forum. I think it's good, very good. You have taken out the time from Sunday itself. I know for a chartered accountants, it's like 6 days are very pretty bad days. Some deadlines are there every now and then, but still you have came. Thank you for coming. And let me introduce to all of myself. I am Ankit Maheshwari. I'm a chartered accountant by profession. Have 10 plus year of experience. Yes. Okay, so let me introduce Ishwar to you. So Ishwar is a very good friend of mine, and I know him for last 5 years, and he is a very hardworking guy, a chartered accountant. He is a very young guy, young and energetic. Although his beard give him a look which he wants have some experience, but he's a very hardworking guy, and I have seen him grown right from starting, and currently he is he is an indirect tax committee member of Pune ICI. He has taken more than 100 seminars, trained more than 100 students in CA field, and he is a conveyor of Pune East Study Circle. So I think making a study circle itself is a challenging task. Is a very long process. It's not so easy. Like you have to be very dedicated to that and then get it. So that is there. And the other thing I can tell you, he is doing the GST part. So GST itself is a very patience thing. Okay, so over to Ishwar now. We can start on the how to become a chartered accountant. I think, yes. So today we have agenda about ICI, what ICI is, how we become CA, what is fee structure, what is course details, what is opportunity after becoming CA, what can other avenues CA can serve, and how can you earn money after becoming CA, because that is the most important concept, right? So what is ICI, or the Institute of Chartered Accountants of India? So people go to colleges. Some people are might be doing 12th. Some people might be doing graduation. So the people who are doing 12th, the regulatory body is HSC board or ICSC board, CBSC board. वैसे ही ग्रेजुएशन के कुछ है स्टूडेंट्स, उनके लिए पुणे यूनिवर्सिटी होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी होगा, मुंबई यूनिवर्सिटी होगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज है. सो सीए को रेगुलेट कौन करता है? सीए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट, बिकॉज सीए कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी डीन, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी रेगुलेट नहीं करता है. सीए रेगुलेट होता है एक एक्ट के तहत, जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949. तो आपको अगर कुछ भी चेंजेस करने करिकुलम में, आपको स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस करने, तो सांसद से अप्रूवल लेना पड़ता है. ठीक है, तो कोई भी आए, किसी को भी लगे अरे चलो ये खराब है बदल देते, ऐसे नहीं होगा. इट इज वेरी स्ट्रक्चर्ड. दैट इज व्हाई सीए इज वेरी magnificent field, and the repo of CA is अभी एजुकेशन सेक्टर में ऐसे हुआ है कि एमबीए को कोई ज्यादा ये नहीं होता है, अगर आईआईएम से कर दो तो ही है. तो सीए का मेंटेन डिग्निटी है बिकॉज उसको एक्ट रेगुलेट कर रहा है, ताकि कोई यूनिवर्सिटी रेगुलेट करता है. मेरे को ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. And I think Ishwar, one more point I would like to add, like when I was doing chartered account, people used to kaha se kara. So exactly, I think exactly. This is a very common question. People think it is a college, but it's not a college actually. तो कोई कॉलेज नहीं होता है. आपको एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. उसके ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस है. पुणे में ब्रांच है, मुंबई में है, दिल्ली में है, अहमदनगर में है. ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस है. आपको ब्रांच में जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. अभी तो ऑनलाइन हुआ है पूरा. एसएसपी का पोर्टल है आईसीआई का, वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. रजिस्ट्रेशन का बेसिक फीस होता है, वो पे करना पड़ता है, एंड इंस्टीट्यूट आपको बुक्स घर पे डिलीवर कर देता है. तो ना ही आपको कुछ कॉलेज अटेंड करना है, ना ही कुछ करना है. आपको जस्ट सेल्फ स्टडी करके इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे लेक्चर्स भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वो भी कर सकते हो. तो आईसीआई सीए क्यों? तो आईसीआई इज द सेकंड लार्जेस्ट बॉडी इन द वर्ल्ड. तो मतलब दुनिया में हर जगह पे सीए के बॉडीज है, लेकिन आईसीआई से अगर आप करते हो सीए, तो आपको कोई भी कंट्री में इजीली एंट्री मिलता है, बिकॉज आईसीआई का कोर्स उतना अच्छा है, उसका करिकुलम उतना अच्छा डेवलप हुआ है. Our senior has also made a lot of reputations. Right. So अभी सीए करता क्या है? That is the most important part. Because मुझे नहीं पता था सीए करता क्या है. मैं ऐसे ही, मेरे पापा ने बोल दिया, एक सीए से मिलवाने लेके गए, वो सीए बोला क्या रे तू सीए कर. तो एग्जैक्टली करता क्या था पता नहीं था मुझे. बिकॉज डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, ऑडिट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होता है. जो उनका बैकग्राउंड बिजनेस वाला है उनको पता होता है, लेकिन जिनका बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं है, उनको मोस्ट प्रोबेबली आइडिया नहीं होता है कि सीए होता क्या है, सीए करता क्या है, एग्जैक्टली रोल क्या है उसका. तो सीए इनकम टैक्स के काम करता है. गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स पे करने के लिए बोलती है, तो सीए इज मीडिएटर गवर्नमेंट के और लोगों के बीच में. सीए लोगों को हेल्प करता है एक्ट समझ के उसके ऊपर का प्रॉपर टैक्स पे करने के लिए.
तो एक्ट समझ के प्रॉपर टैक्स पे करना बहुत जरूरी है। आप अगर गलत टैक्स पे करते हो तो एक्ट में कुछ प्रोविजन है, उसकी वजह से आपको पता होना चाहिए एक्ट क्या है। तो सीए को पता होता है एक्ट क्या है। जीएसटी, अभी आपने जीएसटी सभी जगह पे सुना होगा, मोदी जी जीएसटी जीएसटी कर रहे हैं, वन नेशन वन टैक्स। तो सीए हेल्प करता है लोगों को जीएसटी फाइल करने में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑडिट। तो जो कंपनीज एक्ट है, जितने भी कंपनीज है इंडिया में, कंपनीज एक्ट के तहत सिर्फ सीए ही साइन कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट। तो दैट इज वैल्यू ऑफ सीए। कोई और किसी को भी अथॉरिटी नहीं है साइन करने के लिए, सिर्फ सीए को अथॉरिटी है। कोई भी ऑडिट रिपोर्ट, टाटा का रहे, रिलायंस का रहे, या फिर छोटी कोई कंपनी है जिसका टर्नओवर 1 लाख रुपए है, 1 लाख से 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ कोई भी कंपनी रहे, उसको साइन सिर्फ सीए कर सकता है। तो इसके लिए सीए जरूरी है। फाइनेंस के काम होते हैं, कुछ लोगों को फंडिंग चाहिए होता है, टैक्सेशन का होता है, और आजकल तो बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर भी में आए। हमारे सामने एक सीए बैठे जो एक खुद का वेबसाइट बना के बैठे। तो बहुत सारे एवेन्यूज है जहाँ पे लोग ओपन कर रहे हैं, जहाँ पे लोग नया नया काम कर रहे हैं। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैंने I पहले just लिया पार्ट। यस सर। I just want to add one thing, Ishwar, like कि now CAs are more than audit and taxation. People think it Yes. is taxation, but CA has so analytical mind. When you do this course, your mind develops in a, आपका mind बहुत analytical हो जाता है। आप ऐसी ऐसी चीजें देख सकते हो जो नॉर्मल अकाउंट्स वाले नहीं देख सकते, या नॉर्मल दूसरे फाइनेंस के लोग नहीं देख सकते, क्योंकि यू अंडरस्टैंड लॉ, यू अंडरस्टैंड नंबर्स, देन यू कैन एनालाइज अ लॉट ऑफ थिंग दैट इज देयर। सो अभी एक चीज पहले लेना की जरूरत है, क्योंकि आप करने वाले हो, पता नहीं करोगे नहीं करोगे, बट कैसे करना है उससे पहले क्यों करना है ये क्लियर होना जरूरी है। आपके पास क्यों नहीं होगा तो कैसे करना है उसका जवाब मिल गया कोई फायदा नहीं है। तो आप सोच लीजिए आपको क्यों करना है सीए, उसका जवाब होगा तो ही मजा है। तो अभी आईसीआई क्या करता है? आईसीआई तो बड़ा बॉडी है। अभी क्यों सीए क्यों? तो मैंने सवाल पूछा क्यों करना है सीए। अभी देखिए कोई भी बंदा, अभी आप सुन रहे हो लेक्चर, आपको सीए करना है, क्यों करना है? बिकॉज पैसे कमाने। मोस्ट ऑफ द लोगों का मोटो यही होता है, पैसे कमाने। कोई भी कंपनी है, इंग्लैंड की हो, अमेरिका की हो, इंडिया की हो, मुंबई की हो, पुणे की हो, दिल्ली की हो, सबको पैसे कमाने। तो जग में मेरा मानना यह है कि जग में एक ही कॉमन लैंग्वेज है, दैट इज अकाउंटेंसी। क्योंकि सबको पैसा कमाना है और सबको पैसे का हिसाब रखना है। तो आप कहीं पे भी जाओ, पैसे की भाषा तो सबको समझती है। तो आप अगर सीए करते हो, सीए जैसा डिग्निफाइड कोर्स करते हो, तो आप 7 कॉन्टिनेंट्स में अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में कुछ भी काम कर सकते हो। आप यहाँ से अगर एक कोर्स करोगे कोई भी दूसरा, तो पता नहीं वहां पे जाके काम आएगा कि नहीं, लेकिन पैसे का कोर्स है तो कहीं पे भी काम आएगा और किसी को भी समझ में आएगा अगर आपके पास नॉलेज है। तो दैट इज वाई अकाउंटेंसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी हमारे यहाँ पे मराठी में एक म्हण है की हिशोब खर्च झाले तर दुःख नसतं, हिशोब न लागल्याचं दुःख असतं. सो वी हेल्प पीपल टू सेव्ह मनी. वी हेल्प पीपल टू गिव अकाउंटन्सी टू देयर हार्ड अर्न मनी. I just want to add one thing here कि it's CA मतलब अकाउंटेंट ही नहीं हो गया, it's like I tell you one thing, कंपनी में कम से कम 6 डिविजन्स होंगे, सेल्स होगा, ऑपरेशंस होगा, एचआर होगा, लीगल होगा, आईटी होगा, बट ओनली अकाउंट्स इज ओनली डिवीजन जहां पे सारी इंफॉर्मेशन आके क्लब होती है। अदरवाइज एट एवरी प्लेस नथिंग हैपेंस। ऑपरेशन वाला मेहनत करेगा, 10 रुपए का चीज 2 रुपए में बेच पैसे का देगा। हिसाब तो सबको चाहिए, कोई भी That's सेल्स it. वाला दौड़ रहा है, ऑपरेशन वाला दौड़ रहा है, सब पैसे के लिए दौड़ रहे हैं। करेक्ट, आई थिंक दैट्स वेरी गुड। यस यस। तो अभी सीए आईसीआई क्या करता है? आईसीआई इज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक। तो अभी गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, इनकम टैक्स से चाहिए, जीएसटी से चाहिए, फाइनेंस से चाहिए, सब जगह से चाहिए। लोगों को तो पता नहीं ना पे कैसे करना है। तो आईसीआई हेल्प पब्लिक टू पे द टैक्सेस। सो दिस इज व्हाई आईसीआई इज अ पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। ये मोदी जी भी कहते हैं, ये हमारा सीए का मोटो है, वी आर नेशन पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। जो भी दुनिया बन रही है, जो भी अपना देश डेवलप हो रहा है, उसमें हम पार्टनर्स है, बिकॉज वी आर हेल्पिंग गवर्नमेंट टू अर्न देयर रेवेन्यू। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो अभी ड्रीम इट, बिलीव इट एंड अचीव इट। सीए क्यों करना है, उसके और कुछ वजह। जैसे मैंने बोला कि आईसीआई जग में 2 नंबर की लार्जेस्ट बॉडी है। आप सीए आईसीआई से करोगे तो कोई भी कंट्री में जाके यू कैन डू देयर वर्क आफ्टर ओनली कंप्लीटिंग देयर वन एग्जामिनेशन। आप वहां के जाके सिर्फ टैक्सेशन पढ़ लो, आप वहां के सीए हो जाते हो। इतना अच्छा कोर्स है आईसीआई का। आपका रेपुटेशन हो जाता है। किसी के भी पापा को, अगर किसी के भी पापा बोलते हैं कि मेरा बेटा सीए कर रहा है, 4 लोग बोलते हैं अरे वाह बेटा सीए कर रहा है। तो दैट इज द प्राउड मोमेंट फॉर पेरेंट्स। अपने को भी अरे सीए है तो आई हैव बीन सिटिंग विद I am very middle class. I am from very middle class background, but I am sitting with MPs and MLAs right now.
क्योंकि सीए ने ये दिया है, दैट इज द रेपुटेशन सीए गिव यू। पैसे तो आते ही है, इकोनॉमिक वेलबींग, बिकॉज पैसे की बात कर रहे हो आप, पैसे के डॉक्टर हो, पैसे के डॉक्टर हो तो पैसे तो आने ही है आपके पास। और बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, नॉट ओनली अकाउंटेंसी, पर वी विल डिस्कस इन ब्रीफ कि बहुत सारे करियर के ऑप्शंस है। दैट इज व्हाई सीए इज द बेस्ट कोर्स, बट यू हैव टू, जैसे बोला है, ड्रीम इट, बिलीव इट, अचीव इट, यू हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अभी बहुत सारे आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे जहाँ पे बोला गया है कि अरे कुछ नहीं, 12 से भी इजी है, 10 से भी इजी है। कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ सच्ची में, कोर्स डिफिकल्ट है। आप में अगर हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी है तो आप कोर्स लीजिए। आप देखिए, टैलेंट की बात नहीं है, टैलेंट हो ना हो, हार्ड वर्क होना चाहिए बंदे में। अगर हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी है, पेशेंस है, तो बंदा पक्का सीए कर सकता है, राइट? one thing Ishwar I want to add, Yes. in engineering you need to be on the top. अगर आपको top colleges में जाना है तो आपको top लाना पड़ेगा, but Right. in CA you need to be consistent, you need to be patient, you can do this course. In CA there is topper is always there, but there is a system where you pass. It's not a ranking system. In engineering everybody will ask what is the percentage, but in Right. CA people ask you are chartered accountant. That's the value That's course all. has. It's Right. the value this course has. मेरे कॉलेज के भी कुछ सर टॉपर्स थे, बट दे आर नॉट सीए राइट नाउ। ऐसे नहीं कि आप होशियार हो तो हो जाओगे, आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगे, मेहनत करो तो हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो अभी कोर्स के डिटेल्स के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट कैन रजिस्टर आफ्टर पासिंग 12। तो एक है डायरेक्ट एंट्री रूट है और एक फाउंडेशन रूट है। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज आप तो यही देखने के लिए आए हो कि रूट कौन सा है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। But before discussing this in brief, I would like to discuss some other aspect of course. Okay. So eligible कौन है? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अरे सीए कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। आप अगर फाउंडेशन रूट से जा रहे हो तो आपको कोई भी इससे 12th किया हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, यू कैन टेक एडमिशन फॉर फाउंडेशन कोर्स। उसमें मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया है, हाँ, लेकिन आपको मिनिमम परसेंटेज लाने पड़ते। कितने? 35%। बस, कोई बिग डील नहीं है। आप पास हो जाओ 12th और आप एडमिशन ले सकते हो फाउंडेशन कोर्स को। तो नॉट नेसेसरी कि आपको कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो साइंस बैकग्राउंड से है एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर प्रोफेशनल सिलेबस। ओके, I just want to add यस, one thing here. मेरा एक फ्रेंड है जिसका केवल 11th में 12th में he was just having 58%, and you will amazed to know he topped in final 18th rank all over India. So that's the case. Hard work can, someone has rightly said, hard work can beat smart workers or talent. So hard work always beat talents if talent doesn't work. That is the golden rule. So आप डायरेक्ट एंट्री के रूट से जा रहे हो, तो इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड देन यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 55%। तो आप डायरेक्ट एंट्री से सीए को एडमिशन ले सकते हो। अगर आप अदर करिकुलम से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, तो आपको 60% लाना जरूरी है। ओके, कोर्स का ड्यूरेशन कितना है? दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एंड क्रिस्प, बिकॉज नॉर्मली कोर्स 4.5 ईयर्स का है, लेकिन नॉट नेसेसरी आप 4.5 ईयर्स में करोगे। तो ऑन एन एवरेज आई हैव सीन माय फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, एवरेजली देखोगे तो आपको 5 to 6 ईयर्स लगता है अगर आपको कुछ अटेम्प्ट लगते हैं। इफ यू क्लियर इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, नथिंग इज गुड देन दैट। आप 4.5 साल में कर सकते हो, और अगर अटेम्प्ट लगते रहे तो 7 साल, 8 साल, 10 साल भी लग सकते, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। बट ऑन एन एवरेज वी कैन अज्यूम कि 6 ईयर्स में हो जाता है। ओके, तो एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है? एग्जाम स्ट्रक्चर आपको 3 स्टेजेस में एग्जाम होती है। फर्स्ट होता है फाउंडेशन, सेकंड होता है आईपीसीसी दैट इज इंटर, और थर्ड इज फाइनल। आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट का, आपको 12th में वगैरह कैसे होता है, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, कि 35% इज पासिंग। सीए में ऐसे नहीं होता है। आपको 40% लाने ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में। और आपका जो ग्रुप होगा, तो ग्रुप क्या होता है क्या नहीं होता है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ग्रुप में आपको होगा 50% नेसेसरी। ओके, तो आपका ग्रुप अगर 4 सब्जेक्ट का है तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 लाना है। टोटल हो गया 160, बट 160 यू विल बी नॉट क्लियर योर ग्रुप। ओके, तो आपको लाने 200 मार्क, एटलीस्ट 50% इन ग्रुप आपको लाने हैं। तो अगर आप एक सब्जेक्ट फेल होते, आपके 210 मार्क आ गए, लेकिन आपको एक सब्जेक्ट में 38 मार्क्स आ गए, तो क्या? कुछ नहीं, आपको पूरा ग्रुप वापस देना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक आप 10th 12th में एक सब्जेक्ट रह गया तो उतना दे सकते हो। आपको पूरा ग्रुप वापस देना पड़ता है। आपको 200 मार्क एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 मार्क चाहिए ही चाहिए। आपको अगर 40 भी आ रहे और ग्रुप 200 नहीं हो रहा है तो भी यू आर फेल। आपको 210 भी आ रहे
और आपको 40-40 नहीं आ रहे, मतलब 50 आ रहे, 55 आ रहे, 45 आ रहे और एक सब्जेक्ट में 39 है, फिर भी यू आर नॉट क्वालिफाइड, आपको वापस वो ग्रुप देना पड़ता है, आपको एक सब्जेक्ट देके पास नहीं हो सकते हो। तो एंड डोंट एक्सपेक्ट सीए इज लाइक जैसे एमबीएस में 99% होते हैं, सीए में आज तक कभी इतना परसेंटेज नहीं आया है। हाँ, आपको डोंट 200 एक्सपेक्ट भी हो दैट। गए, 210 भी हो गए तो भी अरे भगवान का शुक्र मानिए, खुश हो जाइए। इट्स अ वेरी 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 बिग हाँ, थिंग। तो फाउंडेशन में एक ग्रुप होता है, आईपीसीसी में और फाइनल में दो दो ग्रुप्स होते हैं, आपको दोनों भी सब क्लियर करने पड़ते हैं, तभी आप पास होते हो। एग्जाम मई में एक बार होती है, नवंबर में एक बार होती है। इट इज नॉट लाइक यूपीएससी की आपको साल में एक बार एग्जाम आएगा, अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं मिलेगा। और यूपीएससी की तरह भी नहीं कि आप इंटरव्यू क्रैक हो गए तो ही आपको सब हो गया, मतलब आपको वापस स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना है। फाउंडेशन क्लियर हो गया तो आपको आईपीसी का ग्रुप नहीं निकला तो आईपीसी का ही देना है, आपको वापस फाउंडेशन का ग्रुप नहीं देना है। तो आपको एक एक स्टेज क्लियर करते चलना है, यूपीएससी की तरह नहीं कि वापस आप ये करोगे, एंट्रेंस एग्जाम वापस दोगे, ऐसे नहीं होगा। ओके, तो अभी नॉर्मल रूट्स की बात करते हैं। व्हाट इज नॉर्मल रूट? फाउंडेशन रूट। फाउंडेशन रूट में आप 10th के बाद एडमिशन ले सकते हो। आप क्वालिफाई कब होते हो फाउंडेशन देने के लिए? आप क्वालिफाई होते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th। ओके, तो आप 12th होने के बाद फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन एग्जाम से पहले आपको 3 महीने रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। मतलब आज अगर मई में मैं बात कर रहा हूँ, मई 2022 है, तो मई 2022 में आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो अभी नेक्स्ट एग्जाम है 15 जून को, 15 जून 22 को, यू आर नॉट क्वालिफाइड दैट फॉर दैट एग्जाम। तो आपको, आप अभी रजिस्टर करोगे तो आप नवंबर 2022 के एग्जाम को क्वालिफाई हो सकते हो, बिकॉज 3 महीने का क्राइटेरिया वहां पे फुलफिल होगा। ओके, तो फाउंडेशन में क्या होता है? फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट हो गए, रिटर्न सब्जेक्ट है, उसमें 2 सब्जेक्ट है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी है, लेकिन आपको 400 मार्क में से 200 मार्क लाने हैं, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 मार्क लाने हैं। ऐसे 160 मार्क लाना आपको, 200 मार्क लाना कंपलसरी है। ग्रुप का 50% टोटल होगा तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। ओके, तो आप अगर फाउंडेशन क्लियर करते हो नवंबर के इसमें, नवंबर के बाद आपका रिजल्ट आएगा वो फरवरी में, राइट? फरवरी 23 की बात करते हैं। तो अभी आईपीसी फाउंडेशन तो क्लियर होगा, तो इंटर कब दे सकते हो? इंटर आप दे सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर फाउंडेशन, उसके 9 महीने के बाद कर सकते हो। ओके, तो फाउंडेशन हो गया आपका, उसके 9 महीने के बाद बात करते हैं, तो 9 महीने कंप्लीट होते हैं समथिंग अक्टूबर में वगैरह कंप्लीट हो गए, तो आप नवंबर 23 का अटेम्प्ट दे सकते हो। तो आप आईपीसीसी के लिए फरवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, फरवरी में क्लियर हो गए, सीपीटी पास हो गए, फाउंडेशन पास हो गए, तो आईपीसीसी के लिए तुरंत एग्जाम स्टार्ट कर दो। तो अभी देखिए आईपीसीसी में होते 2 ग्रुप, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो एक ग्रुप की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो 2 ग्रुप की प्रिपरेशन करते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप 2 ग्रुप की प्रिपरेशन करो, क्योंकि क्या होता है उसके बाद एक बार आप आईपीसीसी का एक ग्रुप भी पास हो गए तो भी यू आर एलिजिबल फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ओके, तो आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हो एक ग्रुप क्लियर होने के बाद। और क्या होता है फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी चल रहा है, आपका ऑफिस भी है दिन भर, और फिर आपको ग्रुप 2 भी क्लियर करना है, बहुत हेक्टिक हो जाता है, आपको पास होना फिर मुश्किल हो जाता है, थोड़ा टाइम होता है। देखिए आपका आईपीसीसी के बाद 3 साल के बाद फाइनल आने वाला है, तो आपके पास टाइम ड्यूरेशन है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप आईपीसीसी है बोथ ग्रुप क्लियर कर लो। फायदा और एक होता है कि आप जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाओगे, तो जब बड़ी बड़ी फर्म से, जो भी सीए फैटर्निटीज के बिग 4 बोलते हैं उसको, या फिर मिड साइज फर्म है, तो उन वो लोग क्राइटेरिया रखते हैं कि अगर आपका बोथ ग्रुप क्लियर है तो ये आप हमारे पास आओ आर्टिकलशिप के लिए। तो आर्टिकलशिप कहाँ से करते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए आईपीसी के बोथ ग्रुप पास हुए तो ही वहां से मिलता है आपको इंटर्नशिप। तो आप प्रेफर करो बोथ ग्रुप करने का, नहीं होता है टोटली फाइन, एक ग्रुप कर लो, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट अटेम्प्ट में और एक ग्रुप कर लेना, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप बोथ ग्रुप कर लो। फिर आईपीसी में क्या होता है, बोथ ग्रुप्स में यू हैव 4 सब्जेक्ट। ओके, तो आपको वैसे ही जैसे फाउंडेशन में था वैसे ही 4 सब्जेक्ट आपको 40 मिनिमम 50% का टोटल क्लियर करना I है। also suggest कि both group ही करने चाहिए, because in both group you always get a benefit of set off. यस, So like even likewise, if you ask my example also, I did score well in first group, and then I got set off for first group for the second. So this always beneficial. I तो think that's सेट very ऑफ की true. अभी सर बात करें, मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ सेट ऑफ क्या होता है। तो अभी आप ग्रोथ ग्रुप देते हो आप, तो आपको क्या करना है ना, एक ग्रुप में 230 आ गया, दूसरे ग्रुप में 170 आ गया, तो आपको सेट ऑफ मिलता है उसका, तो आपको टोटल 400 हो गया, 800 में से 400 आप तो पास हो गए। लेकिन अगर सिंगल सिंगल ग्रुप देते तो आपको ग्रुप 1 तो पास हो जाते, लेकिन ग्रुप 2 में 170 मार्क है, वो नहीं क्लियर होता। आप साथ में दिए हो, इसके लिए फिर क्या होगा कि आपको सेट ऑफ मिलेगा। अभी एक ग्रुप 230 पे क्लियर हो गया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में 170 दूसरे ग्रुप पे हो गए, तो आप नहीं बोल सकते कि पिछले अटेम्प्ट का 30 ले लो, नहीं होगा।
साथ में दिया है तो ही ये बेनिफिट है। तो 2-3 बेनिफिट है आप बोथ ग्रुप करने का, तो बोथ ग्रुप प्रेफर कीजिए। बोथ ग्रुप पास हो गए आप, उसके बाद आता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सीए सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्योंकि है बहुत सारे सिलेबस में लोगों को बस पढ़ रहे आप बीकॉम कर रहे होगे तो कॉमर्स ग्रेजुएट हो गए तो आपको पता है, आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, आप टैक्सेशन पढ़ रहे हो, लेकिन आपको प्रैक्टिकली कुछ नहीं पता है। आपको पैन कार्ड पता नहीं है, आपको टैन पता नहीं है, आप बैंक के चेक्स क्या होते हैं पता नहीं है, आपको जीएसटी का रिटर्न कैसे फाइल करना है पता नहीं है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न क्या है पता नहीं है। तो सीए सिलेबस डिजाइन ही ऐसे किया है कि आपको 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगा, जहां पे आपको ये सब चीजें सीखने को मिलती है। तो आपने जो आईपीसीसी में सीखा है उसका इम्प्लीकेशन आपको वहां पे करने को मिलता है, और जो आपको फाइनल में पढ़ना है वो भी आप काम करते हो। तो क्या है, आप फाइनल में जो पढ़ रहे हो वो भी चीजें समझ में आती है आपको कि आप पढ़ क्या रहे हो, राइट। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप, आई वुड रिकमेंड कि अच्छे फर्म से कीजिए, बिकॉज आप फाइनल के बाद जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हो, वो लोग बहुत ज्यादा ये करते हैं कि आप बिग फोर से आर्टिकलशिप किए हो, मिड साइज से किए हो, छोटी फर्म से किए हो, तो आप, आई वुड प्रेफर कि आप बिग फोर से या मिड साइज फर्म से ही आर्टिकलशिप कीजिए। आपको अगर And प्रैक्टिस में उतरना है तो आप छोटी फर्म से कर सकते हो, बिकॉज वहां पे आपको वैरायटी ऑफ वर्क मिलता है। आपको जॉब I would करना है just like to add two things here. इसमें क्या है कि जैसे आर्टिकलशिप जो ईश्वर कह रहे, इट्स वेरी गुड। आपको आर्टिकलशिप में यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज लोग कॉलेज जाते हैं, दे डू ऑल द ड्रामास, ये मतलब कुछ तो चल रहा है। इन आर्टिकलशिप यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आर्टिकलशिप कभी भी डमी नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा आपको आर्टिकलशिप एक्चुअल में करनी चाहिए, बिकॉज वो जो पीरियड होता है, उस आपकी जो एज होती है, उस समय यू हैव टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। आपकी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी होती है, यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। आप अगर बिग फोर से करते हैं, अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, टू जैसे ईश्वर डेवलप ने योर बोला बिग फोर पर्सनालिटी, इन शॉर्ट आप करेक्ट आर्टिकलशिप में पक्का आपकी पर्सनालिटी, आप जो बनते हो, जो हीरे को तराशने का काम होता है वो आर्टिकलशिप में होता है। जो सीए बनता है ना, अभी यूपीएससी का अगर कोई स्टूडेंट होगा ना, तो उसको पता है कि उनको इंटरव्यू क्रैक करने के बाद उनको ट्रेनिंग होता है 6 महीने का। तो वहां पे वो सिखाते कि एक आईएएस ऑफिसर हाउ शुड ही बिहेव, उसका पर्सनल डेवलपमेंट वहां पे करके लेते हैं वो लोग। वैसे आर्टिकलशिप में आप 3 साल में सीखते हो कि हाउ शुड यू डील विद पीपल, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप एज अ पर्सन आप डेवलप होते हो। तो आर्टिकलशिप होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। बहुत सारे लोग डमी करते हैं, डोंट गो फॉर डमी, बिकॉज दैट इज योर लॉस। आप सीए हो जाओगे, आपको जॉब नहीं मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। बिकॉज जॉब इन सीए फैटर्निटी, आई एम टेलिंग यू, आप कितने भी सीनियर रहे, कुछ भी रहे, आपको कितना नॉलेज है आपकी डिग्री के ऊपर नहीं, आपको जितना नॉलेज है उतना अच्छा पैकेज आपको मिलता है। आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर जितना अच्छा है उतना उतना आपको अच्छा पैकेज मिलता है। ओके, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गया आपका 2.5 इयर्स का, तो आप एलिजिबल होते हो फाइनल के लिए। तो क्या नॉर्मली हाउ इज द रूट, आप आईपीसीसी क्लियर कर लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रहे, साथ में ही आप फाइनल के क्लास ज्वाइन कर लो, फाइनल के क्लास खत्म कर लो, और आप फाइनल का अटेम्प्ट जैसे ड्यू होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के टाइम पे 2-3 महीने का छुट्टी ले लो, पढ़ाई करके फाइनल क्लियर हो जाओ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो 21 में ही सीए होते हैं, जो लोग ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही उनका रिजल्ट आ जाता है और वो सीए होते हैं। ऐसे भी बहुत सारे केसेस है, तो यू कैन टेक अ बेनिफिट ऑफ दैट ऑलवेज। ओके, और इसमें कुछ फाइनल में भी 2 ग्रुप होते हैं, सेम एज आईपीसीसी, आपको क्लियर करना है एक एक ग्रुप। बोथ ग्रुप आई वुड रिकमेंड आपको एक ग्रुप करना है तो भी इट्स फाइन। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंट्री रूट। सो डायरेक्ट एंट्री क्या है कि आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, तो कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आप 55% अगर आपको मार्क्स है तो आपका फाउंडेशन का जो स्टेप है सीए का वो स्किप हो जाता है। यू डायरेक्टली टेक एडमिशन फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 9 महीने का खत्म होने के बाद आप इंटर्न को जा सकते हो। तो अभी यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए, आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके साथ में आपको आईपीसीसी भी क्लियर करना है, उसके साथ में आपको फाइनल भी क्लियर करना है। इट इज बिट हेक्टिक। आई वुड रिकमेंड कि फाउंडेशन के रूट से जाओ तो थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है पढ़ाई के लिए। आप यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पे हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि आप डायरेक्ट एंट्री भी कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कर रहे हो, आप कॉलेज भी कर रहे हो, आप सब चीजें साथ में कर रहे हो, पॉसिबल नहीं होता है। बट ईश्वर ये कॉलेज के बाद होता है ना, लाइक यू हैव टू कंप्लीट द कॉमर्स ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद, यस सर, यस सर, कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद। और दूसरी चीज क्या होती है ना, आप 21 के हुए हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, बाद में आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपको टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा चला जाता है। तो 12th के बाद अगर फाउंडेशन रूट आप ऑप्ट कर रहे हो तो इट्स ऑलवेज गुड, बिकॉज आप सेटल भी बहुत अच्छे से होते हो लाइफ में। तो आई वुड रिकमेंड कि डायरेक्ट एंट्री रूट से अच्छा है कि आप फाउंडेशन रूट
ऑप्ट कर लीजिए। ओके, तो फी स्ट्रक्चर कैसे होता है? बहुत सारे लोगों को फी इज अ कंस्ट्रेंट। तो सीए में सबसे अच्छी बात है कि आपको फी बहुत कम है। आपका पूरा सिलेबस एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है। मैं आपको फी एक्सप्लेन है ही करूंगा नहीं कैसे। एक्चुअली, सीए हाँ, में तो तो फी फ्री बात ऑफ करना ही कॉस्ट गलत हो गया। कैसे ही बात है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखिए, फाउंडेशन कोर्स को आपको टोटल फीस है 9,200। ओके, उसके बाद इंटरमीडिएट कोर्स को आपको टोटल फी है 18,000 रुपए, फाइनल को है 22,000 रुपीज। ओके, अभी अदर फीस आपको कुछ बीच बीच में इंस्टीट्यूट बोलते कि आप 15 दिन का कंप्यूटर का कोर्स कीजिए, 15 दिन का पीएमबीए का कोर्स होता है काइंड ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट का, वो कर लीजिए। ये वो सब मिलके आपको फीस आता है 77,000 रुपीज प्लस, लेट्स अज्यूम इज एज 80,000 90,000। अभी क्या है, सीए में जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हो तो इंस्टीट्यूट ने कंपलसरी किया है हर सीए को जिसके ऑफिस में आर्टिकल है उसको उनको स्टाइपेंड देना है। तो आपको 3 साल हर महीने में एक स्टाइपेंड मिल जाता है जो उसका जिसका टोटल 90,000 होता है। तो आप अगर देखोगे तो आपका टोटल गवर्नमेंट का सीए का फी है 70,000 80,000, आपको 90,000 रुपए तो स्टाइपेंड का ही मिल रहा है। तो एज अ फ्री हो गया। अगर आप प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन करते हो तो दैट इज योर कॉल, बट इंस्टीट्यूट पूरा मटेरियल देता है, इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल यूज कीजिए, इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स लीजिए, वहां पे हो जाता है। आपको स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा डोंट मिलता है। इधर बस वही है कि डोंट फॉलो द हर्ड कि हमको ट्रेनिंग करने के लिए करना है या प्राइवेट लेक्चर करने के लिए करना है। आई वाज टेल यू कि इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल्स है दे आर वेरी गुड। इवन ईश्वर, अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो इंस्टीट्यूट की मॉडल्स आर सो एक्सप्लेनेटरी कि फॉर कंपनी लॉ आई रेड दैट ओनली, इट वाज सो सर एक्सप्लेनेटरी। अभी तो ओके इंस्टीट्यूट ने साइट पे ना खुद के लेक्चर्स भी डालना चालू कर दिया है। उन्होंने ओके प्रोफेशनल्स हायर करके उनके लेक्चर्स भी है। तो यू कैन, यूट्यूब पे भी है बहुत सारे सैंपल लेक्चर्स, इंस्टीट्यूट के साइट पे पूरा सिलेबस है, जो लेक्चर्स आपको चाहिए वो मिल जाते हैं। तो आप वो सिलेबस कर सकते हो, तो आपको एज अ फ्री हो जाता है। मैंने खुद ने इंजीनियरिंग को एडमिशन नहीं लिया था बिकॉज मुझे इंजीनियरिंग का फी बहुत ज्यादा हेवी था, मेरे पापा कुड नॉट बियर इट। तो सीए कैसे फ्री में हो रहा है इसके लिए मैंने कर लिया। मेरे नहीं पार्टनर भी दैट आई सेम एग्री। सिचुएशन है कि उसको ऐसे था कि चलो यार फ्री में हो रहा है, कम पैसे में हो रहा है तो कर लेते हैं। तो फी बहुत सारे स्टूडेंट के लिए कंस्ट्रेंट होता है। तो आपको यहाँ पे हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन हार्डवर्क विल पे आउट। पे आउट इन अ बिग वे। यस यस यस। तो अभी मंत्रा ऑफ बिकमिंग से जैसे मैं हम बात ही कर रहे हैं कि हार्डवर्क प्लस डेडिकेशन। आपको देखिए यहाँ पे टैलेंट कहीं पे भी नहीं लिखा है, हार्डवर्क प्लस डेडिकेशन स्पेसिफिकली लिखा है। टैलेंट हो ना हो नॉट नेसेसरी। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मराठी कॉमर्स बैकग्राउंड से है, आई एम टेलिंग यू, मराठी कॉमर्स बैकग्राउंड से है, प्रॉपर जेडपी स्कूल से सीखे हुए लोग सीए है, जिनको 12th में 10th में 40% है। आपको झूठ लग रहा होगा, यू कनेक्ट मी, आई विल सेट अप मीटिंग विद देम। ये फैक्ट है, बस डेडिकेशन है। मैंने वो लोगों को देखा कि वो लोग रात को 2-2 बजे तक पढ़े, सुबह 5 बजे उठने के बाद वापस पढ़ रहे थे। इतना हार्डवर्क करने के बाद भगवान आपको सक्सेस देता है। ईश्वर, टैलेंट आप की कोई अपने कमी पार्टनर नहीं है। अंकुश का भी बताइए इसमें, अंकुश का यस सर, आई यस थिंक। बाद में वी आर कमिंग टू दैट। ओके ओके, तो अभी सीए हो गए सीए हो गए, हार्डवर्क कर लिया, सब कर लिया। तो सीए होने के बाद क्या, आगे क्या? ओके, तो अभी आप 4 चीजें हैं जो कर सकते हो। एक तो खुद का प्रैक्टिस और जॉब। अभी खुद का प्रैक्टिस मतलब क्या, लोगों को ये समझ में नहीं आता। तो जैसे आपने डॉक्टर को देखा होगा, कुछ कुछ डॉक्टर सपोज सह्याद्री हॉस्पिटल है तो वहां पे एज जॉब कर रहे हैं। ओके, कुछ कुछ डॉक्टर खुद का क्लिनिक डाल के बैठे हैं। तो वो जॉब प्रैक्टिस प्रैक्टिस में क्या होता है कि आप कंसल्टेंसी देते हो कंपनीज को, और जॉब में क्या होता है आप कंपनी के पेरोल पे कंपनी के लिए काम कर रहे हो। तो दोनों चीजों में फर्क है। कुछ कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि खुद का बिजनेस करना, तो वो लोग प्रैक्टिस में चले जाते हैं। दोनों भी चीजें अच्छी है, दोनों भी जगह पे आउट अच्छा है। प्रैक्टिस में स्टार्टिंग में 2 साल तक 3 साल तक आपका क्लाइंट बेस अच्छा होने तक थोड़ा सा पे आउट कम आएगा, लेकिन बाद में इट विल पे यू ऑफ। और जॉब में स्टार्टिंग से ही आपको, मैं आगे बताऊंगा कि पे आउट कितना मिलता है जॉब में वगैरह। कुछ कुछ लोग नॉट नेसेसरी सीए हो गए तो सीए का ही काम कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो बिजनेस में गए, कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग का कर रहे हैं, कुछ लोग प्लास्टिक का कर रहे हैं, कुछ लोग खुद का फैक्ट्री सेटअप डाल दिए, कुछ लोग खुद का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो एवरीवन कैन डू व्हाटएवर वी वुड लाइक टू। कुछ कुछ लोग यूपीएससी करते हैं। सीए होने के बाद यूपीएससी आईआरएस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप रेवेन्यू में जा सकते हो, वहां पे आपको बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है। आप गवर्नमेंट, जिनको आईएएस आईपीएस होना अच्छा लगता है, तो आईएएस की पोस्ट होती है आईआरएस के थ्रू। आप
यूपीएससी कर सकते हो फॉर श्योर। ओके, तो अभी आप ये सारी चीजें कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जा सकते हो, आप एडवाइजरी सर्विस कर सकते हो, आप एकेडमिक्स क्लासेस ले सकते हो, बहुत सारे लोग क्लासेस में है और दे आर वेरी सक्सेसफुल। कॉमर्स फील्ड के क्लासेस, एमबीए के क्लासेस, आप बहुत सारे कॉमर्स के कोई भी, एक बार सीए हो गए तो कॉमर्स से रिलेटेड कुछ भी सिखा सकते हो आप बिजनेस कर सकते हो, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दे सकते हो कंपनीज को कि उनको कंपनी उनका कैसे रन करना है, ये सीए उनको बताता है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग और लोग सुनते हैं, राइट। तो अर्न व्हाइल यू लर्न, ये मिनिमम स्टाइपेंड जो मैंने बात किया, तो जो सिटीज के अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूट ने डिसाइड करके दिया है कि आपको इतना स्टाइपेंड मिलना ही चाहिए और इतना स्टाइपेंड आपको मिलता है आप सी ऑफिस में काम करते हो तो। सो डोंट वरी, आप 3 साल काम करोगे उसका भी आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, नहीं 3 साल काम करोगे उसका रिटर्न तो ईश्वर दे यूज इन द लाइफ होल लॉन्ग लाइफ। मिलेगा, वो तो है। यस यस यस। ओके, सो अभी नेक्स्ट एजेंडा में कुछ बेसिक देखते हैं। आईसीआई ने बहुत सारे वर्चुअल क्लासेस, आपको जो मैं बोल रहा था, आईसीआई के साइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको वर्चुअल क्लासेस मिलेंगे, ई लर्निंग्स के बहुत सारे सेमिनार्स है, आपको बहुत सारी चीजें आईसीआई ने ऑलरेडी अवेलेबल करके दिया है। क्लाउड कैंपस है जहाँ पे आपको कैंपस प्लेसमेंट होता है, जैसे इंजीनियरिंग के कॉलेज में होता है कैंपस प्लेसमेंट, आईसीआई का भी कैंपस प्लेसमेंट होता है। ये आईसीआई के कुछ पब्लिकेशंस है जो आप ले सकते हो टू रेफर हाउ टू बिकम अ सीए। राइट चॉइस क्यों है, ड्रीम इट बिलीव इट क्यों है, आईसीआई ऑन ग्लोब क्या है। ओके, उसके बाद स्कॉलरशिप भी है आईसीआई का। अगर आप मेरिट में आते हो, टॉप 50 में आते हो ऑल एग्जाम में, तो आपको मेरिट भी स्कॉलरशिप मिलता है 1500 पर मंथ का। तो अगर उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, बट यू आर ब्राइट स्टूडेंट एंड यू आर इन नीड ऑफ मनी, इंस्टीट्यूट विल हेल्प यू फॉर श्योर। Some of members also will help you if you go and meet them. If you are bright student, members can also help you. Okay, so ये कुछ नया स्कीम है। कैंपस प्लेसमेंट, अभी मैं जैसे बोल रहा था, ठीक है जॉब में गए तो पैसा कितना मिलेगा, तो देखिए ऑन एन एवरेज आपको जो सैलरी 2020 का जो रिकॉर्ड है हमारे पास, तो एवरेज सैलरी 9 लाख रुपए का था, 8.91 लाख रुपीज पर एनम। तो 9 लाख का ऑन एन एवरेज सैलरी में, हाईएस्ट सैलरी जो कैंपस प्लेसमेंट्स में मिला था दैट वाज 23 लाख रुपीज। तो ये लोग आते हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए, आईसीआईसीआई बैंक आता है, एक्सेंचर आता है, ईवाई आता है, टाटा आता है, वेदांता आता है, इन्फोसिस आता है कैंपस प्लेसमेंट के लिए। इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा कैंपस प्लेसमेंट रखता है। इफ आप ब्राइट हो, आपने अच्छे से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया है, फाइनल में आपने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए, ये लोग आपको हायर कर लेते हैं और आपका अर्निंग 5 to 8 लाख रुपीज तो पक्का है, 5 to 9 लाख रुपीज का आपका अर्निंग सीए होने के बाद फिक्स है। ये कोई भी सीए रहे, आप पैसे तो कमाओ। वन थिंग ईश्वर, क्या है जैसे ये तो कैंपस प्लेसमेंट इज जस्ट वन वर्ड। आप ईश्वर से पूछ लीजिए, ये तो कैंपस में भी नहीं गए, फ्रॉम द राइट फर्स्ट डे ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस, सो दैट इज ऑल द केस। other than CA there is no other course which provide you so much opportunity. CA एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां से आपको even if you do small internal audit you start getting money of your knowledge. Other businesses you have to build reputations and reputation, after that you start doing something big. So this is the power of things, and nowadays CAs are also getting lot of money due to their analytical powers more on the other than taxation side. Companies आती है लेती है, why ICICI bank might be choosing. तो मेरा एक फ्रेंड है, ही वो लगा था ईश्वर, इट्स लाइक 20 लाख रुपीज में फर्स्ट पोस्ट, लाइक दैट इज आल्सो द वेरियस केसेस। यस, लोगों को क्या है ना, ये है कि आपको पक्का 5 to 8 लाख रुपीज का पैकेज मिलता ही है, दैट इज रिकॉर्ड। अगर आप क्लियर होते हो तो आपको पैकेज मिलना ही है। आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको प्रैक्टिस में भी यू हैव टू बिल्ड योर रेपो, बट यू विल गेट मनी बिकॉज सीए इज वेरी वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप पैसे के डॉक्टर हो इन शॉर्ट। करेक्ट, आई थिंक दैट्स वेरी राइट एक्सप्रेशन। सो यूएसपी क्या होता है, सीए का यूएसपी क्या है, सीए क्यों, देखिए एक तो एक्ट के अंदर है, एस्टेब्लिश एक्ट में हुआ है। आप कॉमर्स आर्ट साइंस कोई भी आ सकता है, कोई भी कर सकता है। भी क्या है ना, बहुत सारी जगह पे रिजर्वेशन होता है, कास्ट सिस्टम में ये वो, तो यहाँ पे ऐसे नहीं है। टैलेंट दिखाओ, माल लेके जाओ, टैलेंट दिखाओ, डिग्री लेके जाओ। आप टैलेंट दिखाओ तो आपको पैसा मिलेगा, तो ये सब टैलेंट की बात है। ओके, आपको कैंपस प्लेसमेंट है, आप मल्टीटास्क काम कर सकते हो। आप कोई भी ऐसे नहीं कि आपने एक फील्ड किया तो उसमें काम करना है, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाते हैं। आपको सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, आपको एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिलता है, ग्रेट लर्निंग मिलता है मिनिमम कॉस्ट पे। आपको ऐसे नहीं कि
अभी मेरा एक दोस्त है जो एमडी कर रहा है. आई एम टेलिंग यू ही हैव टू पे ह्यूज अमाउंट. यू हैव टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन दैट थिंग. तो ऐसे नहीं होता है. ये कुछ चीजें हैं. पावर ऑफ सीए सिग्नेचर. तो अपने जो मोदी जी है उन्होंने भी कहा था 2017 में, अगर किसी को पता होगा तो, कि योर सिग्नेचर इज मोर पावरफुल देन पीएम एंड गवर्नमेंट सिग्नेचर, बिकॉज अकाउंट साइन बाय यू वो गवर्नमेंट रेफर करता है. तो ये ध्यान रखिए कि आपका सिग्नेचर एक सेलिब्रिटी से भी बड़ा है, बिकॉज सेलिब्रिटी भी आपके पास आता है कि साइन दे दे. उसके ऑडिट रिपोर्ट पे भी आपको ही साइन करना है. तो ऑडिट का पावर सिर्फ सीए के पास है. फॉरेंसिक ऑडिट हो, टैक्स ऑडिट हो, कंपनीज एक्ट हो, वहां पे लिखा हुआ स्पेसिफिकली कि पर्सन हु इज क्वालिफाइड अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 ही कैन ओनली साइन द ऑडिट रिपोर्ट. सो आप ही कर सकते हो. यहाँ पे आपका खुद का है. राइट. सो आप सिविल एग्जाम कर सकते हो. आईआईएम के साथ इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे टाइप किए हैं. आपको अगर फ्यूचर एमबीए कोर्सेज करना है तो आपको वहाँ पे कुछ डिस्काउंट मिलता है. पीएचडी कर सकते हो. बहुत सारे यूनिवर्सिटी के साथ इंस्टीट्यूट का टाइप है. आप सर्टिफिकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेस है. फॉरेंसिक ऑडिट हो गया और बहुत सारे कोर्सेस है जो आप कर सकते हो. ओके. सो प्रोमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने गोयल साहब है, ओबीसीए है. सुरेश प्रभु जी ओबीसीए है. कुमार मंगलम बिरला सीए है. उसके बाद हरीश साल्वे सर, आपने नाम सुना होगा. राकेश झुंझुनवाला सर है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट. ये मुझे ध्यान नहीं था कि राकेश झुंझुनवाला भी सीए. Yes, yes. इसमें तो नंबर ऑफ सीए. आनंद राठी स्टार्टेड अकाउंटेंट, मोतीलाल ओसवाल स्टार्टेड अकाउंटेंट. बहुत सारे. there is a list of people like they have done tremendous Yes, job. yes. So these are some motivational stories. एक ऑटो रिक्शा वाले की डॉटर नवंबर 2012 में सीए हो गई मैम. So it is big achievement. तो कोई भी कर सकता है. A visually challenged female to become a CA, blind lady chartered accountant. So I have, I will share some motivational stories, or my story we can say in short, because I have come from middle class family. और मुझे पता नहीं था, मैंने जैसे बोला मुझे ही पता नहीं था सीए क्या होता है. तो मैं एडमिशन ले लिया. बस अपने को ये पता है कि ये करना है और मेहनत करनी है. तो आप कर सकते हो. मेरे जो पार्टनर्स है दे आर फ्रॉम सेम बैकग्राउंड. उन्होंने खुद का पढ़ा है, खुद की मेहनत की है. एवरी मनी दे स्पेंड दे हैव अर्न. उन्होंने खुद से पैसे कमा के खुद से सीखा है. तो आप अगर अच्छे से, आपको फैमिली सपोर्ट कर रहा है तो आपको सिर्फ मेहनत करनी है. मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे भी खुद के कमाए और एक्सपेंस भी खुद का करके खुद उन्होंने एग्जाम पास किए. आपको जस्ट मेहनत करना है. आप सुबह 7 से रात को 12 बजे तक बैठने का कैपेसिटी है तो आप कर सकते हो. और ये आपको अभी नहीं है, डोंट वरी. ये आपको सीए सिखा देता है. हमारा भी किसी का नहीं था, हम भी 2 घंटा पढ़ लिए, बहुत हो गया, ऐसे था. लेकिन ये सीए सिखा देता है कि आपको बैठना है. आप वो एनवायरनमेंट में जाते हो, वैसे दोस्त बनाते हो, वो लाइब्रेरी में बैठते हो आप, तो ये चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है आपके पास कि आपको कैसे पढ़ना है. आई जस्ट वांट टू ऐड, जो ईश्वर कह रहे थे, मतलब कि हमको इंस्पिरेशन के लिए तो बहुत बड़े बड़े ईश्वर ने नाम लिए, सीए कुमार मंगलम बिरला, एवरीबॉडी नो. बट मेरे आसपास भी एक ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसका मैं ईश्वर भी बता सकते हैं. मतलब हाउ हार्ड वर्क ही वाज. मतलब उसको अपने घर में पैसे देने रहते थे, तो 4 महीने पहले वो पैसे कमाता था कि अगले 2 महीने छुट्टी ले पाए. इतना मेहनत करके पैसे देता था. और then he studied and then he become chartered accountant. Everybody was just waiting he should fail, but he still become a chartered accountant. CA And बन he is गए. very successful right now. He is very successful right now. मतलब it's really tremendous job. मतलब अगर कोई ये बोलता है कि मेरी फैमिली इश्यूज के कारण मैं सीए नहीं कर पाया या फैमिली इश्यूज के कारण कुछ नहीं कर पाया, तो I just always in my office also I just give him his example only. He is Ankush. His name is Ankush, but he's really awesome guy. I must tell you. मतलब everybody अगर ईश्वर से, मतलब किसी को भी ऐसा लगता है कि नहीं हमारे यहाँ पे ये इश्यूज है या ये इश्यूज है, तो You आप एक बार connect me. I will set up meeting with your few guys. पर की बात करता हूँ तो देखिए अभी ये पुणे स्टडी सर्कल ऐसी, he become now he's politically, मतलब he's active in the market now. People knows him. He is trying everything. So what's the base? The base is started accountant. वहां से आपकी सीधी जो 5 साल की जर्नी है आप करते हो, वो आपको 10 साल आगे रह जाती है. So that is the best part this institute has given to us, and I really respect this institute for this part. Yes. So go for it. If you have any doubt, any queries, we are uploading this video on YouTube, and you can put your queries in a comment section. We will reply you as soon as possible, or you can connect us on LinkedIn or exacards.com website.
or Instagram, we have page by name Exacart. So you can connect anywhere and we can help you to guide to become a CA. And you can rightly, my motivational quote is that if hard work doesn't, if talent doesn't work hard, hard work will beat talent. It is for sure. And I have seen this. So all the best, guys, for your future endeavors. I think Ishwar, it's so nice of you on Sunday you have given this, and actually this is the required need of the time, because now the results will be coming of 10th and 11th and people will be searching like what to Right. do in their career. I think this is the best career we can have, and like it's nothing, no need to worry about. You then do not stress your parent with the funds requirement. Nothing is there. If you really want to work hard, chartered accountancy is there, and it's a very glorious profession which has been built on the year of 70 years. And I think I thanks to Institute for everyone. Thank you. Yes, yes, yes. Good. Thank Sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you, Shwar. Thank Thank you. you. Thank you all. And to all, please go and visit our website, xcart.com. Subscribe our YouTube channel. Subscribe, follow my LinkedIn, xcart.com page. We are also on Insta also. And now we are planning to have more such webinars. And we have partnered with Ishwar also, and a lot of the people will coming with lots of such webinars which will be useful to you. Thank you, Ishwar. Yes, Thank you. thank you. Okay, bye.